It explains the rules of volleyball. The objective game is for your team to win 3 sets faster than the opposing team. Teams are made up of 12 players, with 6 players taking control at any one time. They consist of a lead row, 2 setters in the back row, and a left side, right side, and middle hitters in the front row. To win a set, you must score 25 points and be at least 2 points ahead. If the scores are 25-24, for example, the game carries on until one team has a 2-point lead. Sounds easy, so how do I score these points? To score a point, you must aim to hit the ball over the net and onto your opponent's court. The court is 18 meters long and 9 meters wide, and the area you're aiming for is 9 meters by 9 meters. There is an attack line 3 meters away from the net, 8 feet above the ground for men, and 7 foot 4 inches above the ground for women. If the ball is hit onto the lines, this also counts as a point. Hitting the ball over the net onto the floor to win points sounds easy enough, but in volleyball, your team is only allowed up to 3 touches of the ball. The first touch is known as the pass of the ball. This is usually to control an attack from your opponents. The second touch is known as a set, and is a setup so an attacking player can make the final shot. The third touch is known as an attack or a spike. This usually is an attacking shot over the net. अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखा था वो था नेटबॉल का वीडियो, और जब आप स्कूल में हम लोग आते थे, हमारे लेक्चर्स होते थे, तभी हम लोगों ने नेटबॉल गेम भी सीखा है। तो आज हम लोग नेटबॉल गेम के बारे में जानने वाले हैं कि कौन से प्लेयर, मतलब कितने प्लेयर्स खेलते हैं, ग्राउंड कैसे रहता है, उसमें कौन से पोजीशंस रहते हैं। नेटबॉल ऋषि चौधरी, आपको ये स्लाइड रीड करनी है। ऋषि खुद को अनम्यूट करो। ऋषि चौधरी रीड करो। Good morning, sir. Introduction. Netball is a ball sport played by 2 teams of 7 players. Netball is most popular in many Commonwealth nations, and according to the INF, netball is played by more than 20 million people in more than 80 countries. Games are played on a rectangular court with raised goal rings at each end. Each team attempts to score goals by passing a ball down the court and shooting it through its goal ring. Players are assigned specific positions which define their roles within the team and restrict their movement to certain areas of the court. During general play, a player with the ball can hold on to it for only 3 seconds before shooting for a goal or passing to another player. The winning team is the one that scores the most goals. Netball games are 60 minutes long. जैसे कि यहाँ पे बताया है कि नेटबॉल जो गेम है 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। एक टीम में 7 प्लेयर्स रहना जरूरी है,
7 एक्टिव प्लेयर्स रहते हैं जो ऑन कोर्ट खेलते हैं, लेकिन नेटबॉल की पूरी जो टीम है वो 12 प्लेयर्स की रहती है। और नेटबॉल जो गेम है मोस्ट कहाँ पे पॉपुलर है, तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस है उनमें नेटबॉल जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। उसी के साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें भी नेटबॉल गेम जो है वो इंक्लूडेड है। और जो इंटरनेशनल नेटबॉल फेडरेशन है उनके डेटा के हिसाब से उनका ऐसा कहना है कि मोर देन 20 मिलियन पीपल जो है वो नेटबॉल गेम खेलते हैं और 80 से ज्यादा कंट्री में ये गेम खेला जाता है। ये गेम जो है वो रेक्टेंगुलर कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट के दोनों एंड में गोल रिंग्स मतलब गोल पोस्ट रहते हैं और उसमें गोल स्कोर करते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर। और जो टीम सबसे ज्यादा गोल स्कोर करती है उसको उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। उसी के साथ प्लेयर्स जो रहते हैं उनको स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो असाइन की हुई रहती है। और उसी के साथ जो असाइन पोजीशन है तो पर्टिकुलर कोई पोजीशन है वो पोजीशन का जो प्लेयर है उसके लिए जो खेलने का एरिया है प्लेइंग एरिया में जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। नेटबॉल का अभी हम लोग देखेंगे कि जो कोर्ट रहता है वो कैसे रहता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ये देखो आपको लेफ्ट साइड में एक इमेज दिख रहा है, वो है नेटबॉल का ग्राउंड। तो नेटबॉल का जो ग्राउंड रहता है 100 फीट बाय 50 फीट का ग्राउंड रहता है। उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 30.5 मीटर बाय 15.25 मीटर का नेटबॉल का कोर्ट रहता है। उसके 3 इक्वल पार्ट जो है वो किए जाते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसकी वजह से क्या है ये कोर्ट जो है 3 हिस्सों में 3 पार्ट में इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये जो 2 पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, जहाँ पे डी रिंग आपको ये डी गोल सर्कल दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये जो दोनों एरिया है इनको कहते हैं गोल थर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोल रिंग से इसके लिए इनको कहते हैं गोल थर्ड। और ये जो सेंटर में एक पार्ट है उसको कहते हैं सेंटर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे सेंटर सर्कल है इसके लिए इसको कहते हैं सेंटर थर्ड। ये जो 2 लाइन्स है कोर्ट के दोनों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे गोल रिंग है उनको गोल लाइन कहा जाता है। और ये जो साइड में जो लाइन है वो साइड लाइन कहा जाता है। अभी गोल सर्कल जो रहता है वो 4.9 मीटर का रहता है। इसको हम लोग फुट में कन्वर्ट करते तो 16 फीट का रहता है। 16 फीट का सेमी सर्कल मार्क किया जाता है तो उसको कहते हैं गोल सर्कल। उसके बाद में सेंटर में मतलब कोर्ट के एग्जैक्टली सेंटर पे एक 3 फीट का सर्कल मार्क किया जाता है, उसको कहते हैं सेंटर सर्कल। उसी की तरफ टीम बेंच रहता है साइड लाइंस के तो बाहर, साइड लाइन से 3 to 4 मीटर की दूरी के ऊपर टीम बेंच रहते हैं। लेफ्ट साइड पे एक टीम रहती है और राइट साइड में एक टीम रहती है। उसी के साथ अंपायर का बेंच रहता है, ऑफिशियल का बेंच रहता है सेंटर थर्ड के बाहर की तरफ। अभी गोल पोस्ट जो रहता है जिसको गोल रिंग भी कहा जाता है, तो गोल पोस्ट कैसे रहता है, तो गोल पोस्ट जो है 3.05 मीटर मतलब 10 फीट हाइट का, जमीन से 10 फीट हाइट के ऊपर गोल पोस्ट रहता है। गोल रिंग भी रहती है वहां पे, और वो गोल रिंग जो रहती है 80 mm डायमीटर की रहती है, मतलब 15 इंच डायमीटर की रहती है। उसी के हिसाब से 15 mm का स्टील का रॉड रहता है। ये जो रिंग रहती है वो 15 mm स्टील रॉड रहता है। ये जो है ये स्पेसिफिकेशन है नेटबॉल का जो गोल पोस्ट रहता है उसका। और नेटबॉल का जो गोल पोस्ट है वो एग्जैक्टली दिखता है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है नेटबॉल का गोल पोस्ट। ये कैसे है देखो, इस तरीके से ये नेटबॉल का गोल पोस्ट रहता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेटबॉल की पोजीशंस के बारे में, प्लेयर्स की पोजीशंस कैसी रहती है उसके बारे में। आपको सबसे पहले में ये जो साइड लाइंस दिख रही है, तो देखो लेफ्ट साइड में रेड कलर की साइड लाइन आपको दिख रही है और राइट साइड में ब्लू कलर की साइड लाइन दिख रही है। और अंदर भी आपको देखो जीएस, जीके, डब्ल्यूए, डब्ल्यूडी ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं। तो कुछ वर्ड रेड कलर में है और कुछ वर्ड जो है वो ब्लू कलर में है। तो ये इसके लिए लिखा है कि ये जो रेड साइड है, जहाँ पे जो टीम रेड कलर की जो साइड लाइन है उस तरफ के गोल सर्कल में रेड कलर की टीम अटैक करने वाली है, मतलब वहां पे गोल करने वाली है उस तरफ जाके।
और ब्लू कलर की साइड लाइन और गोल लाइन जिस तरफ है उस तरफ ब्लू कलर की जो टीम है वहां पे जाके अटैक करने वाले हैं, गोल करने वाले हैं। तो हम लोग रेड टीम के बारे में सबसे पहले जान के लेते हैं। रेड टीम, देखो मेरा कर्सर जहां पे घूम रहा है वहां पे आके गोल करने वाले हैं, गोल सर्कल, गोल रिंग में। तो इसके लिए वहां के गोल सर्कल में रेड टीम का गोल शूटर करके जो पोजीशन है वो प्लेयर खड़ा रहेगा। उस प्लेयर की पोजीशन गोल सर्कल में है जीएस, जिसको कहते हैं गोल शूटर। और उसको डिफेंस कौन करेगा? ब्लू कलर की टीम में गोलकीपर जो रहेगा वो रेड कलर के टीम में जो गोल शूटर रहेगा उसको डिफेंस करेगा। सबसे पहले हम लोग है ना रेड कलर की टीम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अभी गोल शूटर जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में विंग अटैकर पोजीशन रहेगी रेड कलर की टीम, और उसके राइट साइड में गोल अटैकर पोजीशन रहेगी रेड कलर की। उसके बाद में सेंटर सर्कल में रेड कलर का सेंटर पोजीशन पे जो प्लेयर खेल रहा है वो रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे गोल डिफेंसर, मतलब जो जीएस है उसके लेफ्ट साइड में गोल डिफेंसर का जो गोल अटैक, हाँ गोल डिफेंसर का जो पोजीशन है वो रहेगा। और राइट साइड में विंग डिफेंसर, और अपोजिट साइड के गोल सर्कल में रेड कलर की टीम का गोलकीपर रहने वाला है। ये पोजीशन है। और ब्लू कलर के जो प्लेयर है उसके अपोजिट खड़े रहेंगे, मतलब जहाँ पे उनका रेड कलर का विंग अटैकर है वहां पे ब्लू कलर का विंग डिफेंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपोजिट पोजीशंस वहां पे खेलेंगे। अभी कौन सा प्लेयर के लिए कौन से एरिया में खेलना अलाउड है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक है, ये हम लोग देखेंगे। जो गोलकीपर पोजीशन रहती है, गोलकीपर पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है वो सिर्फ ये वाला जो एरिया है यहीं पे खेल सकता है, मतलब इस गोल थर्ड में ही वो खेल सकता है। वो सेंटर थर्ड में भी नहीं जा सकता है और अपोजिट गोल थर्ड में भी नहीं जा सकता है, वो सिर्फ यहीं पे खेलेगा। उसके बाद में पोजीशन आती है गोल डिफेंसर जीडी की। वो कहाँ पे खेल सकता है? वो गोल थर्ड पूरा खेल सकता है और सेंटर थर्ड में भी जाके वे खेल सकता है वो, लेकिन वो अपोजिट साइड के वो गोल थर्ड में जाके नहीं खेल सकता है। उसके बाद में है विंग डिफेंसर। विंग डिफेंसर कहाँ पे खेल सकता है? गोल थर्ड और सेंटर थर्ड खेल सकता है, लेकिन गोल सर्कल में नहीं जा सकता है, और अपोजिट साइड के गोल थर्ड में भी विंग डिफेंसर नहीं जा सकता है। जो सेंटर पोजीशन पे प्लेयर खेल रहा है वो कहाँ तक जा सकता है? सेंटर पोजीशन वाला प्लेयर वो पूरा कोर्ट खेल सकता है, लेकिन गोल सर्कल जो है, ये दो जो गोल सर्कल है वहां पे वो जाके नहीं खेल सकता है। उसके बाद में विंग अटैकर की जो पोजीशन है वो कहाँ पे खेलेगी? तो वो जो प्लेयर है वो सिर्फ सेंटर थर्ड और गोल थर्ड में खेलेगा, लेकिन गोल सर्कल में नहीं जाएगा और अपोजिट साइड के गोल थर्ड में भी नहीं जाएगा। तो ये जो विंग अटैकर की पोजीशन है, विंग अटैकर और विंग डिफेंसर के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए जो एरिया दिया गया है खेलने का, प्लेइंग एरिया, वो सेम है। देखो आप, ये यहाँ पे विंग डिफेंसर का है, वो भी क्या है, वो भी गोल सर्कल में नहीं जा सकता है और अपोजिट साइड के गोल थर्ड में नहीं जा सकता है। ये देखो वो जो व्हाइट कलर के एरिया है वहां पे विंग डिफेंसर और विंग अटैकर नहीं जा सकते। अभी है गोल अटैकर जो है उसकी पोजीशन दी गई है। गोल अटैकर जो है गोल थर्ड में खेलेगा, गोल सर्कल में भी जाएगा और सेंटर थर्ड में भी खेलेगा। यहाँ पे गलती से व्हाइट मार्क दिख रहा है, लेकिन वो यहाँ पे पूरे कोर्ट में खेल सकता है। उसके बाद में है गोल शूटर। गोल शूटर कहाँ पे खेल सकता है? सिर्फ गोल थर्ड में वो खेल सकता है, गोल सर्कल में खेल सकता है। मतलब जीएस का जो पोजीशन है गोल शूटर का वो, और जीके मतलब गोलकीपर का जो पोजीशन है वो दोनों प्लेयर सेम एरिया में ही खेल सकते हैं, उसके वो एरिया के बाहर जाके खेल नहीं सकते। अभी ये जो मैंने अभी कहा आपको, जीके, जीडी, डब्ल्यूडी, सेंटर, विंग, डब्ल्यूएच, तो ये पोजीशन हम लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गोलकीपर के बारे में। तो ये स्लाइड जो है रुचि यादव, आपको ये स्लाइड रीड करनी है। रुचि,
Sir, I'm audible. हाँ, yes. Goalkeeper. The goalkeeper is the last line of a defense. They guard the goal circle and the defense third, and the must stop the goal shooter from scoring. They have to stay alert so they can collect rebounds off the post and intercept passes. Goalkeepers are also responsible for taking throw-ins from the goal line. They are often tall and physical players who are prepared to fiercely protect their goal post. For more information about this position, view the goalkeeper position guide video. Okay. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो है वो देख लेते हैं. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. This is the Shock Absorber Netball Academy at intersport.com. In this position guide, we're going to find out more about the goalkeeper. The goalkeeper's main role in the team is to protect the goal and prevent the opposition shooters from scoring. As the last line of defence, any player in this position needs to be able to command the goal circle and keep the ball and the opposition away. गोलकीपर जो रहता है, जी की जो पोजीशन रहती है, वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो एक डिफेंस की लास्ट लाइन है. उसके बाद में डिफेंस करने के लिए कोई प्लेयर नहीं रहता. उसके में they guard the goal circle and the defensive third and must stop the goal shooter from scoring. उसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है या जो काम रहता है वो क्या रहता है, तो गोल सर्कल जो है उसको गार्ड करना, मतलब उसको सेफ रखना. वहां पे अटैकिंग टीम के जो प्लेयर्स है, गोल अटैकर और गोल शूटर, उनको वहां तक पहुंचने नहीं देना. ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट उसका रोल रहता है, काम रहता है. उसी के साथ उसको और क्या करना रहता है, तो जो गोल शूटर जो है उसको गोल स्कोर करने से रोकना. ये भी एक इम्पोर्टेंट काम और इम्पोर्टेंट स्किल उसके पास रहना जरूरी है गोलकीपर के पास. They have to stay alert so they can collect rebounds off the post and intercept the passes. और क्या करना है, जब भी गोल शूटर जो है उसने बॉल रिंग में डालने की जब भी वो कोशिश करता है, मतलब जो शॉट जो है वो मारने की कोशिश करता है, और वो शॉट रिंग में जाने के बदले रिंग को टच होके रिंग को बाउंस होके जब भी रिटर्न आता है, रिबाउंड आता है, तो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी गोलकीपर की रहती है. उसी के साथ जो पासेस रहते हैं उसको इंटरसेप्ट करके खुद के टीममेट के पास देने की जिम्मेदारी भी गोलकीपर की ही रहती है. गोलकीपर आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग थ्रो ऑफ द गोल लाइन. उसके बाद में भी बॉल गोल जो अपने गोल लाइंस के बाहर जाता है, तो वहां से थ्रो इन जो रहते हैं, मतलब बॉल कोर्ट के बाहर जाने के बाद फिर से गेम स्टार्ट करने के लिए थ्रो इन करना पड़ता है. तो जो गोल लाइन के ऊपर से जो बॉल बाहर जाते हैं, तो वहां से थ्रो इन लेने के लिए भी गोलकीपर जो है वो ही वहां पे जाके थ्रो इन लेता है. और गोलकीपर का पोजीशन पे खेलने वाला जो प्लेयर है वो हमेशा उसकी हाइट जो है वो अच्छी रहनी चाहिए. वो प्लेयर ऊंचा रहना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए, और वो हमेशा गोल पोस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए. नेक्स्ट है गोल डिफेंस. यश ठाकुर, खुद को अनम्यूट, इस स्लाइड रीड करो. यस सर. हाँ, रीड करो. Goal defense. The goal defense patrols the defensive third, the goal circle, and the center third. Their main job is to stop the opposition from scoring and to get the ball out of the danger area. The goal defense has to keep a close eye on the other team's goal attack. They must have good skills of anticipation so they can block passers and get the ball out to their own attacking players. For more information, Okay, stop. Okay. गोल डिफेंस जिसको कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीडी. ठीक है, तो ये पोजीशन की जो प्लेयर खेलता है उसके वो क्या क्या करता है, उसके रोल क्या है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. द गोल डिफेंस
patrols the defensive third the goal circle and the center third. जो गोल डिफेंस पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर है वो कहाँ कहाँ पे डिफेंस करता है, कौन से जगह पे खेलता है, वो हम लोगों ने देखा था. गोल थर्ड और डिफेंसिव गोल थर्ड जो है और सेंटर थर्ड, वहां पे वो खेलता है. और उसका मेन काम क्या रहता है, मेन रोल, कि जो पासेस आते हैं उनको इंटरसेप्ट करना है. उसी के साथ खुद के गोल रिंग जो है, गोल सर्कल जो है, उसको प्रोटेक्ट करना है. उसी के साथ अपोजिट टीम जो है, वो जो स्कोरिंग करने के लिए उनके जो प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वहां पे उनको रोकना भी उसी का एक काम है. गोल शूटर के साथ गोल डिफेंसर जो है, ये दोनों जो प्लेयर है, वो अपोजिट टीम को गोल स्कोर करने से रोकते हैं. द गोल डिफेंस हैज टू कीप क्लोज आई ऑन द अदर टीम्स गोल अटैक. उसी के साथ अपोजिट टीम जो है, अटैकिंग टीम जो है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या बन रही है, गोल शूट करने के लिए या गोल स्कोर करने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, ये समझ लेना, जान लेना, और उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्विकली वहां पे एक डिफेंस की स्ट्रेटेजी बनाने का काम भी जो गोल डिफेंस पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है उसी का रहता है. उनके पास कौन से स्किल्स होना जरूरी है, तो एंटिसिपेशन का स्किल होना भी जरूरी है. उसी के साथ जो पासेस है उसको ब्लॉक करने का, और अपोजिट टीम के पोजीशन में जो बॉल है उसका पोजीशन खुद के पास लेने का, और टीममेट्स के पास बॉल पास करने का, ये स्किल जो है गोल डिफेंस के पास होना जरूरी है. जीडी पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है उसके पास होना जरूरी है. ओम शिरके, खुद को अनम्यूट करो. Yes, sir. हाँ, रीड करो ये स्लाइड. Wing defense. लिसन, लास्ट पॉइंट जो है वो रीड नहीं करना है. Okay, sir. The wing defense can go into the center and defensive third, but not in the attacking third or the goal circle. The main job is to stop the ball reaching the opposition's goal circle. They must intercept passes and feed them back to the attacking areas, as well as getting the ball forward. They have to mark the opposition wing attack. The defense must be focused and good at controlling the ball. ओके. विंग डिफेंस अभी हम लोगों ने देखा था. देखो, ये विंग डिफेंस, यहाँ पे जो प्लेयर है ये सिर्फ ये एरिया में ही खेल सकता है, गोल सर्कल में नहीं जा सकता है. तो विंग डिफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है टीम में, ये अभी हम लोग जानने वाले हैं. The wing defense can go into the center and defensive third. क्योंकि उसका नाम क्या है, विंग डिफेंस है, तो उसके पोजीशन के साथ डिफेंस वर्ड जुड़ा है. इसका मतलब उसका खेलने का एरिया डिफेंस साइड में ही होने वाला है, डिफेंस थर्ड में, बट नॉट इन अटैकिंग थर्ड और द गोल सर्कल. तो ये प्लेयर जो है विंग डिफेंस, वो डिफेंसिव थर्ड जो है वहां पे खेलेगा, सेंटर थर्ड में खेलेगा, लेकिन अटैकिंग थर्ड में और गोल सर्कल में जाके नहीं खेल सकता है. उसी के साथ अपोजिट टीम या अटैकिंग टीम जो है, उनका बॉल गोल सर्कल तक नहीं पहुंचना चाहिए. इसकी जिम्मेदारी जो है ये विंग डिफेंस करके जो पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है उसकी रहती है. उसी के साथ पास, मतलब अब अटैकिंग टीम जो है वो जो पासेस कर रही है उनको इंटरसेप्ट करके खुद के पोजीशन में लेना, खुद के टीम के पोजीशन में बॉल लेना, और अपना जो अटैकिंग एरिया है, अटैकिंग थर्ड है, वहां पे बॉल को पास करना, ये जो काम है ये विंग डिफेंस पे पोजीशन पे खेलने वाले प्लेयर का है. उसी के साथ अपोजिट टीम का जो विंग अटैकिंग का पोजीशन है उसको डिफेंस करना, उसको रोकने का काम भी, मतलब उसको मार्क करना कहते हैं, उसको रोकने का काम भी विंग डिफेंस पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है उसी का ही है. और बॉल के ऊपर कंट्रोल लाने का काम विंग डिफेंस पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है उसका रहता है. और गोल डिफेंसर, जैसे मैंने कहा, गोल डिफेंसर पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है उसका काम रहता है अपोजिट टीम, अटैकिंग टीम जो है उनका जो अटैकिंग स्ट्रेटेजी है वो रीड करना, और वो उनकी स्ट्रेटेजी है उसके अगेंस्ट में डिफेंस की स्ट्रेटेजी बनाना,
और वो डिफेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो विंग डिफेंस और गोल डिफेंस के जो पोजीशन पे जो प्लेयर खेलते हैं उनका रहता है। नेक्स्ट पोजीशन जो है वो है, आदित्य मोरे खुद को अनम्यूट करो, सेंटर पोजीशन है। सेंटर पोजीशन की जो स्लाइड है वो आपको रीड करनी है, लास्ट पॉइंट रीड नहीं करना है। रंजना यादव खुद को अनम्यूट करो। यस sir, am I audible? यस यस। Centers are available to move in the whole court with the acceptation of goal circle. They have to help out in defense and attack, but they are mainly relied upon to shift the ball away from the defensive area into attack. Centers also restart the game each time a goal has been scored. They do this by making a pass from center circle. The center is the engineer of the team, so they have to be quick and creative with the passing. Centers are normally the swift player on the court, which means they are after among the smallest. ओके, सेंटर पोजीशन, ये पोजीशन ऐसी है कि ये पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर जो है वो मैक्सिमम ग्राउंड पे, मतलब मैक्सिमम एरिया, ग्राउंड के मैक्सिमम एरिया में जाके खेल सकता है। उसी के साथ इसको टीम का बैकबोन भी कहा जाता है। क्यों बैकबोन कहा जाता है? क्योंकि पासिंग का स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए, पासिंग कैसे होनी चाहिए, डिफेंसिव थर्ड में से अटैकिंग थर्ड में बॉल कैसे जाना चाहिए, बॉल को इंटरसेप्ट कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें जो है ये सेंटर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर जो रहता है वो डिसाइड करता है। उसी के साथ जो प्लेयर है सेंटर पोजीशन खेलने वाला प्लेयर, मैंने जैसे कहा कि वो मैक्सिमम ग्राउंड खेलता है। तो ये देखो सिर्फ गोल सर्कल जो है, ये गोल सर्कल एरिया जो है वो छोड़ के पूरे कोर्ट में सेंटर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर जाके खेल सकता है। उसको रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना ही है कि वो गोल सर्कल में जाके नहीं खेल सकता है। और सेंटर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर क्या है, उसको डिफेंसिव स्किल और अटैकिंग स्किल दोनों आना जरूरी है, क्योंकि उसको डिफेंस को भी हेल्प करनी रहती है पासिंग में और अटैकिंग टीम को स्कोर करने के लिए भी उसको हेल्प जो है वो करनी रहती है। और जैसे मैंने कहा था कि डिफेंस एरिया में से अटैकिंग एरिया में बॉल भी उसको लेके जाने की जिम्मेदारी और उसमें एक रोल जो रहता है वो सेंटर का रहता है और टीम का बैकबोन रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया उनको खेलने के लिए मिलता है। गेम रिस्टार्ट करना जो रहता है, गेम रिस्टार्ट करने की जिम्मेदारी भी सेंटर पोजीशन पे खेलने वाले प्लेयर्स की ही होती है। उसके बाद में है विंग अटैक। देवांशी आप खुद को अनम्यूट करो और रीड करो स्लाइड। The wing attack is the key playmaker of the netball court. It is their job to create as many goal scoring chances as possible by passing the ball to the shooter. The wing attack can move in the attacking and center third, but not in the goal circle of defensive third. The wing attack has to have solid passing and collecting skills. They also need good footwork and ability to open up space on the court. ओके स्टॉप। विंग अटैक जिसको कहा जाता है WA, ये अटैकिंग थर्ड में खेलने वाला प्लेयर है। अटैकिंग थर्ड के साथ वो सेंटर थर्ड में आके भी खेल सकता है, लेकिन गोल सर्कल में नहीं जा सकता है। इसको प्ले मेकर कहा जाता है। प्ले मेकर क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है स्कोरिंग करने के चांसेस जो है वो चांसेस को इंक्रीज करने का काम या उसको बनाने का काम जो रहता है वो विंग अटैकर का रहता है। उसको उसके पास कौन से स्किल होना जरूरी है, तो अटैकिंग स्किल होना जरूरी है। उसी के साथ गुड पासिंग और कलेक्टिंग के जो स्किल्स है वो भी होना उसके पास जरूरी है। उसके पास अच्छा फुटवर्क रहना भी जरूरी है। कहाँ से टीम को स्कोर करने के चांसेस ज्यादा है ये भी उसको हमेशा मालूम रहना चाहिए कि कौन से एरिया से हम लोग पास इनिशिएट करेंगे तो टीम के गोल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या गोल हो सकते हैं और हम लोग पॉइंट स्कोर कर सकते हैं।
ये सारी चीजें जो विंग अटैक पोजीशन पे प्लेयर खेलता है उसके पास रहती है, उसको मालूम रहती है, उसको आना जरूरी है। उसी के साथ उसको प्ले मेकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गोल स्कोर करना, गोल कहाँ से स्कोर हो सकता है, पासिंग कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें जो विंग अटैक पोजीशन पे जो प्लेयर खेलता है वो डिसाइड करता है। उसके बाद में है गोल अटैकर। शुभम, Yes, sir. हाँ, आपको स्लाइड रीड करनी है, लास्ट पॉइंट रीड नहीं करना है। Okay. Sir, this one, na? Goal attack. यस, Goal attack. The goal attack's primary role is scoring and setting up goals. They can play in the center third, the attacking third, and the goal circle, but not the defensive third. The goal attack's main duty is to feed the goal shooter so they can fire the ball into the net close to the post. But if the defenders are making the goal shooter, then the goal attack will often have a shoot from nearer the edge of the goal circle. The goal attack must have both strong passing and shooting skills. ओके, ठीक, थैंक यू। खुद को म्यूट कर लो। गोल अटैकर जिसको कहा जाता है जीए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीए। तो गोल अटैकर का जो प्राइमरी रोल क्या है, तो स्कोरिंग करना, गोल स्कोर करना, या गोल स्कोर करने के लिए गोल शूटर जो है, हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में गोल शूटर पोजीशन का स्लाइड देखने वाले, उसके रोल देखने वाले। तो उसका गोल अटैकर का भी रोल क्या है, स्कोरिंग करना या स्कोर करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करके देना गोल शूटर के लिए, ये इसका प्राइमरी रोल है। उसी के साथ गोल अटैकर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर कहाँ पे खेल सकता है, तो सेंटर थर्ड में खेल सकता है, और अटैकिंग थर्ड जो है वहां पे खेल सकता है। लेकिन वो कहाँ पे नहीं जा सकता है, डिफेंसिव गोल थर्ड में वो जाके नहीं खेल सकता है। उसकी मेन ड्यूटी क्या रहती है, तो जो सेंटर पास, जब भी जहां से गेम रिस्टार्ट होता है, तो जब भी सेंटर पास स्टार्ट होता है, तो सेंटर पास को कलेक्ट करना, और वो जो बॉल है, मतलब विंग अटैकर या गोल अटैकर, ये दोनों में से कोई तो भी एक प्लेयर रहता है, वो जो सेंटर थर्ड में आके सेंटर पास कलेक्ट करता है और उसको अपने अटैकिंग गोल थर्ड में लेके जाके गोल स्कोर करने की जिम्मेदारी भी गोल अटैकर के पास रहती है। इसके पास कौन से स्किल होना जरूरी है, तो शूटिंग के स्किल्स होना जरूरी है। गोल स्कोर करने के लिए जो शूटिंग के स्किल्स लगते हैं वो रहना जरूरी है। उसी के साथ पासिंग के जो स्किल्स है वो भी उसके पास रहना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड गोल शूटर। अदिति गायकवाड़, खुद को म्यूट करो और ये स्लाइड रीड करो। लास्ट पॉइंट रीड नहीं करना है। Yes, sir. Goal shooter GS. The goal shooter's main job is simply to score goals. They are allowed in the attacking third and the goal circle, but now here else on the court. The goal shooter must have sharp shooting skills. They have to be able to react quickly, dealing with passes and rebounds. Goal shooters have the steadiest hands on the court and are often among the taller players. गोल शूटर जिसको कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएस। तो गोल शूटर हम लोग को नाम से ही पता चल जाता है कि गोल शूटर मतलब उसका काम क्या रहेगा, तो गोल को शूट करना, गोल स्कोर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जॉब रहता है गोल शूटर का। गोल करने की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गोल शूटर के ऊपर ही रहती है। वो कहाँ पे खेल सकता है, तो वो सिर्फ अटैकिंग थर्ड में खेल सकता है और गोल सर्कल में खेल सकता है, अटैकिंग थर्ड के गोल सर्कल में। इसके अलावा गोल शूटर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर ना सेंटर थर्ड में जा सकता है ना डिफेंसिव थर्ड में जा सकता है। उसी के साथ शार्प शूटिंग स्किल, मतलब शार्प शूटिंग मतलब क्या है कि वो जो शूट कर रहे हैं, बॉल शूट कर रहा है रिंग में, वो गोल में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए, 99 to 100%। मतलब बॉल हाथ से छूट रहा है, रिंग में जा रहा है, गोल रिंग में, तो वो गोल होने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। तो वो स्किल उसके पास रहना जरूरी है।
ओके उसी के साथ उसके पास क्या रहना चाहिए, कौन से स्किल होने चाहिए, ये तो रिएक्ट क्विकली रिएक्ट करने की स्किल होनी चाहिए, डीलिंग विद पासेस एंड रिबाउंड्स। यदि बॉल शूट करने के बाद गोल में कन्वर्ट नहीं होता है, रिंग को टच होकर वो रिबाउंड आ रहा है, तो वो रिबाउंड जो है वो फिर से कलेक्ट करके फिर से शूट करना है, इसके लिए उसको क्या रिएक्ट क्विकली होना जरूरी है। रिबाउंड कलेक्ट करने का स्किल भी उसके पास होना जरूरी है, उसके पास बॉल कलेक्ट करने का भी स्किल होना जरूरी है। गोलकीपर की तरह गोल शूटर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर भी टॉल होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है। और ऐसा देखा गया है कि जो टॉल प्लेयर्स रहते हैं, ऊंचे प्लेयर्स रहते हैं, वो ये पोजीशन पे सक्सेसफुल ज्यादा रहते हैं। तो आज हम लोगों ने नेटबॉल के अलग अलग प्लेयर्स के पोजीशन जो थे वो देखे हैं, उसी के साथ नेटबॉल कोर्ट कैसे रहता है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने आज देखा है। आने वाले लेक्चर में हम लोग नेटबॉल के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग